स्वागत करेंगे अभी। In last 6 years, Hunar Haat provided more than 8 lakh artisans employment and employment opportunity. In Hyderabad Hunar Haat, approximate 30 state and union territory artisans and craftsmen are showcasing their handmade product और यहाँ पर जो है वो लगभग 30 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों की प्रदर्शनी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। और हुनर हाट औपचारिक रूप से 25 तारीख से शुरू हुआ है और 6 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को स्वावलंबन के रास्ते पे ले जाने का, हुनर हाट उसका परफेक्ट प्रकल्प है, परफेक्ट प्रोजेक्ट है। हुनर हाट में हर दिन कल्चरल इवेंट होते हैं। बावर्ची खाना सेक्शन है जिसमें कि देश भर के जो पकवान हैं उनका आपको लुत्फ मिलेगा। मेरा गांव मेरा देश है, जहां पर कि हमारे जो इंडियन फास्ट फूड है, चाहे बाटी चोखा हो, चाहे भेलपूरी हो, चाहे महाराष्ट्र का जो है वो पाव भाजी हो, ऐसे तमाम जो इंडियन फास्ट फूड है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। और हर दिन कल्चरल इवेंट होता ही है जिसमें जाने माने कलाकार होंगे और सर्कस का भी कार्यक्रम दिन में 3 बार होता है। मैं आदरणीय किशन रेड्डी जी जिन्होंने कि अपना इतना कीमती समय निकाल करके देश भर के आए दस्तकारों, शिल्पकारों की हौसला अफजाई की है, उनका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों का भी, मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जिस तरह से इन दस्तकारों, शिल्पकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनकी कहानी सुनिए, उन लड़कियों की, उन परिवारों की जिनकी की जीवन को हुनर हाट ने बदला है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाने का ये हुनर हाट साधन बना है, साथी बना है। मैं किशन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको అందరికీ నమస్కారం। పునరాట్ మళ్ళీ మా హైదరాబాద్లో నా కాన్స్టిట్యున్సీలో పెట్టాలని నేను వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను। ఆ యొక్క విన్నపాన్ని మన్నించి నక్వి గారు ప్రధానమంత్రి గారి అనుమతితో ఈ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। చాలా కీలకమైనటువంటి అనేక ముఖ్యమైనటువంటి మరి ఈ యొక్క శ్రామికులు ఇక్కడ ఈ యొక్క హునర్ హాట్లో తమ యొక్క కష్టపడి చెమటోడ్చి తన నైపుణ్యంతో తయారు చేసినటువంటి అనేకమైనటువంటి మరి ఇక్కడ కళలను ప్రదర్శిస్తున్నారు। అక్కడ ప్రదర్శన కూడా పెట్టారు। కాబట్టి నేను ప్రజలు మిమ్మల్ని కూడా కోరుతాను, ఒక కళాకారుడు ఏదైనా వస్తువు తయారు చేయడానికి ఎంత కష్టపడతాడో, ఏ రకంగా నైపుణ్యత పెంచుకున్నాడో మీరు కూడా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని మరి ఈ 10 రోజులు ఉంటారు కాబట్టి ఈ 10 రోజులలో వాళ్ళు కూడా పూర్తి స్థాయిగా మీరు ప్రోత్సాహం కల్పించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। అదేవిధంగా నేను హైదరాబాద్ నగర ప్రజలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, తెలంగాణ ప్రజలను, తెలుగు ప్రజలను, అందరినీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, ప్రతి కుటుంబము ఈ యొక్క హునర్ హాట్లో వచ్చి
ఇక్కడ ఉండేటువంటి వస్తువులను చూసి కళాకారులను ప్రోత్సహించాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రామికులను ప్రోత్సహించాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వకర్మీలను ప్రోత్సహించాలి. అదేవిధంగా సాయంకాలం జరిగేటువంటి ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా మరి అందరూ ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి ఆ యొక్క సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా తిలకించాలి. కాబట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఈ యొక్క 6వ తేదీ వరకు, వచ్చే నెల 6వ తేదీ వరకు ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఒక అవకాశాలను మరి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం కల్పించి కాబట్టి ప్రతి కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ముఖ్యంగా మరి నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపు, మరి మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మరి ఆ రకంగా ఇండిజియస్ సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి మరి వస్తువులను ఇక్కడ ప్రదర్శించడము, ఇష్టం ఉన్న వాళ్లకు అమ్మడానికి కూడా ఇది పెట్టారు. కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా, చూడాల్సిందిగా. జీవితంలో ఇన్ని వస్తువులు ఒకే దగ్గర ఎప్పుడు చూడలేము, మనం చూడాలనుకున్నా చూడలేము. అవి చూడాలంటే అనేక రాష్ట్రాలు తిరగాలి. కాబట్టి అన్ని వస్తువులు మనం కొన్నా కొనకపోయినా, పర్చేజ్ చేసినా చేయకపోయినా, బట్ దే షుడ్ కమ్ అండ్ దే షుడ్ సీ. దే కెనాట్ సీ ఆల్ దీస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ డెమోస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. కాబట్టి నేను హైదరాబాద్ ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను, అందరూ వచ్చి పిల్లలతో సహా మన దగ్గర మన భారతదేశంలో ఎటువంటి కళలు ఉన్నాయి, మన భారతదేశంలో ఏ రకమైన కష్టపడి పనిచేస్తారు, మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి ఏంది, మన పరంపర ఏంది, మన పురాతనమైనటువంటి ఈ యొక్క సాంప్రదాయంలో అనేకమైనటువంటి వస్తువులు ఏ రకంగా కష్టపడి పనిచేస్తారో, ఈ యొక్క భారతదేశానికి 75 సంవత్సరాలు వచ్చి ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పండుగ జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. కాబట్టి మనము ఏ దేశానికి తక్కువ కాము. చాలామంది విదేశాలకు వెళ్ళి అనేక రకాల వస్తువులు కొనుక్కుంటారు. కానీ నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాను, ఏ దేశంలో కూడా మన దగ్గర కనిపించేటువంటి వస్తువులు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఒక అందుబాటులో ఉండదు. అటువంటి గొప్ప దేశం మనది, అటువంటి గొప్ప వారసత్వం మనది. కాబట్టి ఆ వారసత్వాన్ని అందరం కూడా మనం పదిలపరచుకోవాలి, భావి తరాలకు అందించాలి అనేందుకు దృష్టితోటే ఎవరైతే కవులు, అయితే కళాకారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమం నక్కి గారు చేపట్టారు. ఒకరొకరు ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఫైనాన్షియల్ ఏం కావాలి, బ్యాంక్ నుంచి ఏ రకంగా టైప్ చేయాలి, వాళ్ళ మార్కెటింగ్ ఎట్లుండాలి, వాళ్ళ బ్రాండింగ్ ఎట్లుండాలి, ప్రతి ఒక్క కళాకారునికి ఆ రకంగా ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. ఇందులో ఉన్నటువంటి కళాకారులు ఎవరు కూడా బ్యాంక్ రుణం అడిగితే బ్యాంక్ రుణం కూడా భారత ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఇస్తుంది, ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి ప్రోత్సహించుకొని పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నదని చెప్పి కోరుకుంటూ, फिर एक बार मैं आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मेरा ओर से, हैदराबाद के जनता के ओर से, तेलंगाना के जनता ओर से मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. ये हमारे लोगों के लिए, हमारा हैदराबाद के जनता के परिवारों के लिए एक अच्छा मौका दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. माइनॉरिटी का मतलब ये है कि इसमें सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं. नहीं, मैं वन थिंग और तेलंगाना सरकार ने सबसे पहले ओपन रेजिडेंशियल स्कूल का प्रोसेस शुरू किया. हमने अप्रॉक्सीमेट 200 रेजिडेंशियल स्कूलों को यहाँ पर हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प. उसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं, किशन रेड्डी जी का शुरू से ही अनुरोध था कि तेलंगाना के ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स या 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो MSDP या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में आते हैं. आपको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज खुशी के साथ, और किशन रेड्डी जी के जो लगातार प्रयास था उसका नतीजा है कि तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कवर होंगे अब. और उन सभी ज़िलों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, ITI, पॉलिटेक्निक, हुनर हब या इस तरह के सारे प्रोग्राम्स और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बन सकते हैं जो पहले नहीं बन पा रहे थे.
लाड़ बाजार पहले उसका चूल्हे का बड़ा फर्क है और हैदराबाद की जलेबी और ये जो खासकर रमजान शुगर उसको प्रमोट करने को स्कीम आपके पास है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हुनर हाट देश के हर हिस्से में हो रहा है और हैदराबाद या तेलंगाना के जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं या कारीगर हैं, वो हमारे अभी भी जैसे यहाँ पे आपने जो जिक्र किया सेवैयाँ, तो हमारे ऑफिस में अगर उनका इम्पैनलमेंट नहीं है तो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर वो इम्पैनलमेंट हो सकता है उनका, और अगर यहाँ पे नहीं मिला है तो जहाँ पर भी अगला होगा उसमें उनको मिलेगा। उसके अलावा हम हैदराबाद के अभी भी लगे हुए हैं, वैसे यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद के लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। देखो भैया, मैटर इज इन कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हिजाब पर इंडिया में बैन नहीं है, क्लियर है। देयर इज नो बैन ऑन हिजाब इन इंडिया। ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने डिसिप्लिन होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, और उसको जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के राइट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की भी बात भी हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें कई कंट्रीज से हुनर हाट के लिए इनविटेशन आया था, जिसमें कि कोविड से पहले ब्रिटेन था, यूनाइटेड अरब अमीरात था, शायद पोलैंड था, ये 3-4 कंट्रीज से था। लेकिन क्योंकि अभी ये बीच में 2 साल 2.5 साल से तो कोविड का है, तो उसमें उस वजह से नहीं हुआ, लेकिन आगे सोचेंगे। हैदराबाद में नाइट बाजार का कैसा प्लान क्यों नहीं कर रहे आप? जी सर। हैदराबाद में नाइट बाजार जो प्लान था कांग्रेस के पीरियड में, सर वो स्टेट गवर्नमेंट का, मैं थोड़ी अच्छा जी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जी चलिए। यहाँ हैदराबाद में जो घराट है, कौन से स्कीम बहुत अच्छे आपको लगे, आप थोड़ा मुआयना करेंगे? देखिए जहाँ का भी आप देखेंगे आपको अलग अलग उसके उनकी ताकत दिखेगी। आप अगर मेघालय का देखेंगे तो उनका अलग हुनर होगा, आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे उनका अलग हुनर होगा, कर्नाटक देखेंगे उनका अलग हुनर होगा, आंध्रा देखेंगे अलग होगा, तेलंगाना देखेंगे अलग होगा। हर एक से बढ़कर एक जो है वो हुनरबाज यहाँ पर हैं। आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से है। अब ये जो काम है ये आप खुद करते हैं या कहीं से करवाते हैं? नहीं, मैं भी करता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे परिवार वाले भी करते हैं। ये कब से करते हैं आप लोग? मेरे को करीब 35-36 साल हो गए। अब ये हुनर हाट से आपको क्या फायदा होगा? यहाँ हैदराबाद में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी और कई अलग जगह है ना, अच्छी सेल होती है पेंटिंग की। यहाँ तो कोई समझता नहीं है पेंटिंग के बारे में। अच्छा, इसका कोई अवेयरनेस नहीं है? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये 9 दिन में आपको कैसा रिस्पांस रहा? 0, शून्य रिस्पांस। ओके, थैंक यू। मेरा नाम सी सुब्रमण्यम, मैं आंध्रा से श्रीकालहस्ती से आया था। हम लोग काम लकड़ी का काम है, पूरा सिंगल लकड़ी पे, पूरा हाथ का काम हो। पूरा सिंगल लकड़ी पर? सिंगल लकड़ी पे सर। ये बनाने के 3 महीना लगता। देयर कॉस्ट इज 60,000। ये सिंगल लकड़ी में 3 मंथ लगता है? 3 मंथ लगता है सिंगल लकड़ी पे। क्या वेट है इसका? इसका वेट 40 kg आता। 40 kg। 40 kg। कितने कारीगर काम करते हैं ये इसमें? एक ही आदमी काम करता। सिंगल एक ही आदमी करता है? सिंगल आदमी। तो कालाहस्ती से ताल्लुक है, आंध्रा से? जी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या, कौन सी लकड़ी है ये? येलो टीक वुड है सर। येलो टीक। येलो टीक वुड। ये खराब नहीं होगा? कुछ नहीं आता। कितना गारंटी रहता है इसका? गारंटी तो पूरा लाइफ रहता। लाइफ और क्या आपका इम्पोर्टेंस क्या है आपका जो हम आपका जो काम होता है? इंटीरियर डेकोरेशन आइटम पूरा मिलता है मेरे पास। ब्रैकेट्स, गणेश, सरस्वती, वॉल पैनल, फर्नीचर, काट, डबल काट, सब लोग बनाता हम लोग। अच्छा, ये हैदराबाद हुनर हाट से आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ? हुनर हाट में मेरे को फ्री स्टॉल दिया, आना जाने को पूरा सरकार देता है, रहने के लिए पूरा वही है। आपका बिजनेस कितना हुआ? बिजनेस अभी तो बहुत सेल है, बहुत अच्छा है।
अच्छा है, हाँ बहुत रेस्पॉन्सिबल है, बहुत इंक्वायरी अच्छी है आपके पास। बहुत अच्छा तो है आप शेर, हुनर हाट से मेले से आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। हुनर हाट को मिस्टर सुब्रमण्यम। हाँ हुनर हाट को बहुत धन्यवाद। नाज़रीन देख सकते हैं आप डाइनिंग टेबल जो सिंगल लकड़ी में प्योर लकड़ी में तैयार टीक वुड में तैयार किया गया है। राजस्थान के फनकार इन्होंने किस तरीके से बनाया, क्या डिज़ाइन बनाया है इसका देखते जाएं। ये प्योर वुड के अंदर है और ये डाइनिंग टेबल सिंगल पीस के अंदर है। हुनर हाट, हुनर हुनर तो है ही फन, और हाथ, ये अपने हाथ की मेहनत, उसके ज़रिए क्या कारनामे अंजाम दिखाएं। संदीप ये देखिए पूरे डोर है, अलमारी है, देखिए आप वार्डरोब है जो सिंगल पीस लकड़ी में, उस पर जो काम है पूरा लकड़ी का और पूरा हाथ से अपने फ़न का मुजाहरा किया गया है। देखकर एहसास किया जाना चाहिए आज के तरक्की याफ्ता दौर में, हालांकि मशीन के ज़रिए क्या क्या क्या, लेकिन आज भी फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा अपने हाथों से कर रहे हैं। देखें आप हैदराबाद में मुनक़िदा हुनर हाट में किस तरीके से मुल्क के हमारे फ़नकारों ने अपने हाथ के ज़रिए कितना बेहतरीन संदूक तैयार किया है। ये संदूक है, देखते जाएं, संदूक देखें आप, उस पर जो कारीगरी की गई है, उस पर लकड़ी के अलावा जो पित्तल से जो काम किया गया, नक्काशी की गई है, वो नक्काशी का कोई जवाब नहीं। देखते जाएं। अखिल साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं रामपुर यूपी से रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी आपका जो काम है, फन है, जी ये जी, कौन से मेटल के अंदर है? ये गन मेटल्स में, गन मेटल्स में जी है। जी। इसकी गारंटी क्या रहती है मेटल की? सर गारंटी तो रहती है, लॉन्ग लाइफ आइटम है, अनब्रेकेबल चीज़ है, और इसमें जो पॉलिश है वो मैन है, पॉलिश इसका जाता नहीं है, कभी काला नहीं पड़ता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसा दिख रहा है, इसकी शाइनिंग कम नहीं होती है। जैसा अभी आपके पास बनाया गया है ये आइटम है, ये क्या ये हाथ से बनाया जाता है? जी हाथ से बनाया जाता है, हाथ का और मशीनरी का दोनों का मिक्स है। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? समथिंग 100 लोग काम करते हैं। 100 लोग आपके पास काम करते जी हैं? जी जी। अब हैदराबाद में हुनर हाट जो हुआ है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, सेल हो रहा है और लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट है और सेल हो रहा है। अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम? जी 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 जी, लोग पसंद कर रहे भी आ रहे हैं, आपके? इंक्वायरी है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और एग्जीबिशन की भी तारीफ़ कर रहे हैं, और माननीय नकवी साहब की भी माशाल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं, और उनके ज़रिए अच्छा प्रोग्राम है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बस यही है। ये आपका कब से बिजनेस है ये बिजनेस हमारा करीब समथिंग 20 साल से चल रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, इसमें आप कुछ फाइनेंशियल असिस्ट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, माइनॉरिटी वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है जो ये कंडक्ट की है, आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करती है? जी जी, फाइनेंशियल भी करती हैं, और पर डे का पर बंदे को जो है 1200 रुपये भी मिलता है, आने जाने का टिकट भी मिलता है, हर सहूलत यहाँ पे है। अच्छा, जी जी, ये जो प्रोडक्ट, आप कितने किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास? बहुत है सर, करीब 300-400 किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, इसी चीज़ में 300-400 आइटम बनते हैं, जबकि समथिंग जो है 200-300 तो वैरायटी लगी हुई है डिस्प्ले में। ओके जी शुक्रिया सर। जब बात कर, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। ये अब आपके पास जो प्रोडक्ट है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। आराम से भाई, फ्रूट बॉल्स ये टेबल पर रखते हैं, जो फ्रूट वगैरह, हाँ, ये फ्रूट बॉल्स है। ये मटेरियल क्या है? ये चीनी मिट्टी सेरामिक, मिट्टी सेरेमिक से बना है? हाँ सेरामिक से बना ये हुआ। हाथ से बनाते जी हैं? हाथ से एक एक चीज़ हैंड पेंटिंग, एक चीज़ बनाने के लिए 10 कारीगर लगे रहते हैं। एक काम, एक 10 कारीगर का हाथ में से निकलती है खाली है। ये 10 कारीगर में से निकलती है। जी और जी, वो बताइए, दूसरा आइटम बताइए। हाँ ये हाँ, जूता मगे है सर, ये तैयार होता है हाथ से, हर चीज़ इसकी जितनी भी है लोग सर, सब एक एक चीज़ हैंड पेंटिंग है, सब एक एक कारीगर ने बना रखा अपना हाथों से। हाथों से बना है। बिल्कुल एक एक चीज़, कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मशीन द्वारा बनाई गई, टोटल एक एक चीज़ हाथों से बनाई हुई। ये हाँ, ये हैंड पेंटिंग है, पहले उसको तैयार होती, फिर इसमें उसमें निकलती है 1200, उसमें 1200 उसमें पका हुआ है। अच्छा, हीट के अंदर? जी 1200 हीट टेम्परेचर के अंदर पका हुआ जी, 1200 उसमें जी। इसको कितनी भी उससे वो कर लो, ओवन में कितने वो डाल लेना, गर्म चीज़ कुछ नहीं होने का इसका। इसे एक एक कारीगर ने एक एक हाथ से अपने बड़े प्यार के साथ छपाई से एक एक चीज़ से बारीकी से बना रखा। ये जो वो है तस्वीर, ये कितने का है ये? ये सर वैसे तो है
350 का आपको 250 का लग जाएगा। अच्छा, अब हैदराबाद में हुनर हाट में आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगता है? बहुत यहाँ पे? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होगा, बहुत क्राउड है यहाँ का, बहुत अच्छा हुआ है। पांडिचेरी से ज़्यादा है, पांडिचेरी हो गए थे, यहाँ ज़्यादा अच्छा है काम, बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बिजनेस भी हो रहा है बिजनेस आपका? बहुत हो रहा है माशाल्लाह, अच्छी हो रही है कमाई। ये आपके पास जो है कब से कारोबार में है आप ये? ये इसकी 25 साल हो गए इस लाइन में, वालिद साहब को भी। अच्छा, तो कितने लोग काम करते हैं आपके पास? कम से कम 150-200 लोग काम करते हैं सर। तो आपके पास 150-200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है? जी और इसको एक्सपेंशन है कोई प्रोग्राम आपका? जी, प्रोग्राम क्या है, अब पांडिचेरी में चल रहा है, गुवाहाटी कहाँ चल रहा है प्रोग्राम, गुवाहाटी, इसके बाद गुवाहाटी है इसके बाद हुआ? जी। तो आप जितना हुनर हाट जितना प्रोग्राम पूरा अटेंड करते हैं आप? नहीं को बाजी में नंबर आता, बाजी में आता भी नहीं। अच्छा, रेगुलर नहीं, रेगुलर बहुत मुश्किल होता, कॉल आती तो आ जाता। तो हैदराबाद से आप जो है सेटिस्फाई, यहाँ पर जो बिजनेस है उससे सेटिस्फाई है आप? जी, अच्छा हो रहा बिजनेस माशाल्लाह। थैंक यू आयरन से बात करने के जी, लिए। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुर्रहमान साहब, ये लैंप है आपका? जी लैम्प है, ये नाइट लैम्प। नाइट लैंप जी ये मुख्तलिफ वैरायटीज में है। जी तो बिल्कुल। आप ये प्रोडक्ट क्या है, किससे बनाते हैं? ये सर, ये सिरेमिक चीनी मिट्टी का आइटम। ये सिरेमिक चीनी मिट्टी जो होता है, ये सिरेमिक चीनी मिट्टी से तैयार किया जाता है। एक एक चीज़ ये 2 आदमी तैयार करते हैं इसको, एक आइटम एक को। कितना टाइम लगता है उसके लिए? ये कम से कम सर, ये कम से कम इसे आधा घंटा एक में बनता है। 2 आदमी जब तैयार करते हैं जब आधा घंटा लगता है। अच्छा, 2 आदमी मिलकर आधे घंटे में तैयार जी करते हैं। बिल्कुल। इसकी कास्टिंग क्या है? ये कास्टिंग ये है आपका 550। ये काफ़ी वैरायटी है, 350 से स्टार्टिंग है इसमें। ये 550 है, ये देखिए आप, इसमें आपको 850, ये 850 है। अच्छा, ये बहुत उसका रीजन क्या है? 850 इतना बड़ा डिफरेंस? ये डिफरेंस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें घंटा लगता है पूरा। अच्छा, घंटा लगता है। बिल्कुल तो ये अच्छा गिरने से ये टूटता है क्या? जी, अगर गिराएंगे तो टूटेगा। वैसे तो सेफ रहता है, लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं है। 12,000 वाट में पका हुआ होता है। वैसे इस पर हम खड़े हो जाएं तो भी नहीं टूटता। ये देखिए, अच्छा ये जब भी नहीं टूटता। अच्छा अच्छा। इतना कमज़ोर भी नहीं होता जो ये टूट जाए। अच्छा, ये 12,000 वाट में पका हुआ होता है। ये अगर ऊपर से गिर गया तो टूट सकता है। और आपका प्रोडक्ट वैसे काफ़ी ये रहा, ये वो है फ्लावर फोर्स। ये भी हैंड, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, हैंड से तैयार किया जाता है। एक डिजाइनिंग के लिए कितना टाइम लगता है? ये कम से कम मान के चलो सर 1 घंटा 1 घंटा। एक तैयार होता है। कम से कम सर 50 मजदूर रहते हैं, जब एक दिन में थोड़ा बहुत काम होता है। अच्छा, जी, तो इसकी कास्टिंग क्या पड़ती है? ये 250। 250। देखिए, इसमें कलर मिल जाएंगे आपको। ये हरा है, ये रेड है, ये देखिए। इसमें आपको ये केटल सेट मिल जाएगा। कौन सा सेट? केटल सेट है ये रहा। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, हैंड से तैयार किया गया है जितना भी आइटम है आपका। अच्छा, ये सेट ये देखिए, ये 650 का सेट है। क्या क्या सेट है? क्या बोलते हैं ये इसको? सिरेमिक चीनी मिट्टी का बना हुआ है केटल सेट, 4 पीस का। ये 4 कप हैं, हाँ, लेकिन ये भी इतना कमजोर नहीं है जो टूट जाएगा। इसके ऊपर भी खड़े हो जाए कोई टूट नहीं। देखिए, ये रहा, टूटने का नहीं, इतना कमजोर नहीं है। 12,000 वाट में पका होता है हमारा माल। अच्छा, ये वो नहीं जो एकदम टूट गया, गिर गया। लेकिन अचानक से ऊपर से अगर गिरा तो टूट सकता है। तो कब सा सर सेट है ये? जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, आप कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। आप हैदराबाद में अपने जो है हुनर हाट में जो एग्जिबिट कर रहे हैं, तो इससे आपको फ़ायदा क्या महसूस हो रहा है? सर, ये हुनर हाट हम सभी आर्टिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने आर्ट को शोकेस कर सकते हैं। हम लोग जो है टेराकोटा में डील करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर 19+ मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये इको फ्रेंडली है। ये हमारे पर्यावरण को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा तवा है। आप देख सकते हैं इस तवा पे आप सभी तरीके की रोटियां बना सकते हैं। इसके पीछे मिट्टी का ही हैंडल है जो आपको आराम से उठाने में और पकाने में बड़ा हेल्प करता है। जी, आप हमारी कढ़ाई देख सकते हैं। ये स्पेशल कढ़ाई है। इसके अंदर आप राइस, करी, दाल और किसी भी तरीके का नॉनवेज पका सकते हैं। आप जब इसमें पकाते हैं तो इसमें पूरे आपको 19 मिनरल्स मिलते हैं और इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। जैसे आप हमारी कप की रेंज देख सकते हैं। ये स्पेशल टेराकोटा के कप हैं।
ये वॉशेबल रियूजेबल है, माइक्रोवेव सेफ है, आप इसको माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कप 60 ग्राम का है, लाइट वेट है, जिससे आप इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। आप हमारे डेकोर के आइटम भी देख सकते हैं। इस पर जो है शुभम जी, जो ये आपका आर्ट का काम है, ये क्या कैसा किया गया है ये? सर ये पूरा का पूरा काम हैंड क्राफ्टेड है, पूरा हाथ से किया हुआ काम होता है, बारीक काम, पूरा हैंडल का फिनिशिंग, पूरा कप ये हैंडबेक होता है पूरी तरीके से। और इसको पकाया जाता है 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जिसके कारण आप इसमें गर्म ठंडा कुछ भी डालते हैं ये कप ख़राब नहीं होता, इसकी फिनिशिंग कभी ख़राब नहीं होती। आप इसको धोएंगे इसमें स्मेल नहीं आएगा, ये अच्छे से वॉश हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग है। अच्छा शुभम जी, इसमें जो आप इसमें जो मिट्टी यूज कर रहे हैं, ये कौन सी मिट्टी है? सर इसमें हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं वो काली, लाल और एक स्पेशल काइंड की क्ले होती है। इसको तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एक रेशियो सेट करके, उसके बाद ये कप्स बनाए जाते हैं। इसके कारण आप देख सकते हैं इसमें जो फिनिशिंग है, जो साइज है, सबका एक्यूरेट उसी के कारण से है। ये पूरा हाथ से किया जाता है? ये सब पूरा हैंडमेड काम है, हाथ से चाक पर बनता है ये कप। इसमें किसी भी तरीके का मोल्ड और कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। आप पूरा फिनिशिंग इसका हाथ से किया जाता है और प्रॉपर्ली इसको बेक किया जाता है। और शुभम जी, ये आपका पास जो है ये मेटल का आइटम है, ये क्या है मेटल का आइटम? चूंकि जब आप मिट्टी का काम यहाँ पर कर रहे हैं, मिट्टी का प्रोडक्ट है, तो फिर ये मेटल कैसा? सर ये मेटल नहीं है, ये मिट्टी का ही है। इस पर हम लोग स्पेशलाइज मेटेलिक पेंट करते हैं जो वॉशेबल होता है, ऑयल पेंट होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। और इसको आप दूर से देखते हैं तो मेटल का फील आता है। तो ये मेटल नहीं है, सिर्फ मिट्टी का है? सर ये मेटल नहीं है, मिट्टी ही है। हमारा मेटेलिक में और वुडन में स्पेशलाइज्ड है। हम सारे प्रोडक्ट इस तरीके से पेंट करते हैं जो दूर से देखने पर मिट्टी के नहीं लगते। अब जैसा यहाँ पर आपके वो प्रोडक्ट, क्या वो भी मिट्टी के हैं सब? सर वो भी हमारे मिट्टी के हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारे मिट्टी की थालियाँ हैं, इसको दीपम बोलते हैं। ये वॉशेबल है, इसको आप दीप भी बना सकते हैं और इसको वॉल प्लेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे हमने प्रॉपर एक हुक दिया है जिसके कारण से आप इसको दीवार पर हैंग कर सकते हैं। INN से बात करने, थैंक यू शुभम जी। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? भूपिंदर कुमार, थैंक यू हैदराबाद। सो थैंक यू मोदी जी एंड थैंक्स अगेन ऑफ मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। माय नेम इज भूपिंदर कुमार फ्रॉम आई एम चंडीगढ़ पंजाब। पंजाब से? राइट। 5 दरियाओं का पानी पी के आए हैं आप, वेरी गुड। गुरु नानक की धरती है वो। हाँ, मगर पंजाब 5 दरियाओं का पानी पी के इस टाइम गए हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपके पास जो ये फ्लावर जो है घर के डेकोर के इंटीरियर के लिए, ये किस चीज़ से बनते हैं? वेल ये तकरीबन मटेरियल आता है कोलकाता वेस्ट। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल इसमें लकड़ी के छिलके, छल्ली के पत्ते, मतलब सपोज ये अगर हम इसके ऊपर जो रैपर है वो छल्ली के पत्ते, जिसको आप स्वीट कॉर्न कह सकते हो, उसको रैपर करके फिर ये फ्लावर घर के डेकोरेट के लिए बनाए जाते हैं। और ये सॉलिटरी है, पानी के अंदर एक छिलका होता है, उसके छिलकों से तैयार किया जाता है। जैसे ये आपके लिए ये लकड़ी का रैपर करके इसको स्लाइड करके फिर उसको रैप किया जाता है। थोड़ा इधर आगे ये बताएं कि ये क्या है? इसके नीचे बैम्बो स्टिक है, बैम्बो स्टिक के नीचे ये बैम्बो स्टिक है। ये बैम्बो स्टिक है, इसके ऊपर एक रैपर करते हैं इसको फेविकोल के साथ, फिर उसके बाद छल्ली के पत्तों से इसको रैप किया जाता है, तब जाके फ्लावर तैयार होता है। फ्लावर। और ये जो फ्लावर आप बनाए, ये लकड़ी के छिलके हैं, पूरा लकड़ी के छिलके हैं। तो मतलब आप जो लकड़ी से ही जो है ये काम करते हैं इसका? वेल कोरोना के बाद जब ये प्लेटफॉर्म मिला, धन्यवाद है मोदी जी का जो हमें ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया। ये मेरा फर्स्ट शो है हैदराबाद में और मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ के लोगों से मिलकर, हैदराबाद बिरयानी खा के बहुत खुश, मज़ा आया आज। तो नहीं ये तो है, लेकिन आपको बिजनेस के अंदर क्या response बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा है, है? आप हैदराबाद सेटिस्फाई हुए? बहुत ज़्यादा। इंक्वायरी कैसा, बिजनेस इंक्वायरी? बिजनेस इंक्वायरी प्लेटफॉर्म दोबारा मिलेगा तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा हैदराबाद। ओके, वो थैंक्स अलॉट, थैंक यू हैदराबाद, थैंक यू मोदी जी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम भावेश कदम है। भावेश कदम, कहाँ से हैं आप? सर मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में हैं। ये आपका जो प्रोडक्ट है किस कौन से मेटल का है? सर इसमें 2 तरह की कैटेगरी है। एक हमें जो है वाइट मेटल, अच्छा वो अलॉय रहता है, और एक है ब्रास, वो भी अलॉय रहता है। अच्छा बट ब्रास जो है कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो वाइट मेटल रहता है वो हाफ रेट का रहता है। अच्छा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जो है ये पर्स जो हैंडमेड पर्स है पूरा, ये ब्रास की शीट पे बना हुआ है। इसको हम लोगों ने इनकाविंग की गई है, पूरे हाथ से पूरा वर्क किया गया है ब्रास की शीट पे, और ये लेडीज़ यूज़ करती है। ये हमारा एक्सपोर्ट होता है बाहर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक्सपोर्ट भी होता है जी। तो ये पूरा हैंडमेड है? ये पूरा हैंडमेड है सर ये। तो अब इसे बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? सर इसको बनाने में लगते हैं 5 दिन 5 दिन लगेंगे जी, क्योंकि इसके बाद में इसकी पूरी पॉलिशिंग फिनिशिंग होती है। ये पूरा सिल्वर कलर का रहता है, फिर उसको एंटीक फिनिश दिया जाता है, उसमें टाइम लगता है। थैंक यू। थैंक यू सर। जी गौरव।
कहाँ से हैं आप? गोवा। ये प्रोडक्ट का आपका ज्वेलरी बॉक्स है, किससे बनाया जाता है ये? वुडन के ऊपर हैंड वर्क किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट का कार्य है पूरा। वुडन के ऊपर पूरा बीड वर्क किया जाता है जी। अच्छा, और ये बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है, राजा महाराजाओं के ज़माने से है तो क्या ये हैंडमेड होता है? जी। टोटल हैंडमेड है, टोटल हैंडमेड है। टोटल हैंडमेड बनाया जाता है, अपने हाथों से बनाते हैं। और इसके लिए 4-5 कारीगर कोई साथ में हम मिलके बनाते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, एक संस्था है। आपके कितने लोग काम करते हैं? हम 5 लोग काम करते हैं पूरा। अब एक सपोज ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? एक बॉक्स को तैयार करने में 3 दिन का वक्त लगता है। 5 लोग मिलकर 3 दिन का वक्त लगेगा? नहीं, वो एक लॉट लगता है। जैसे 10 पीस का लॉट लगाया ना हमने, एक दिन में ऊपर का काम होगा, फिर एक दिन में साइड से काम होगा, 2 दिन, तीसरे दिन अंदर का कपड़ा लगेगा। अच्छा, फिर ये पूरा पीस सूखेगा, तब 3 दिन में पूरा तैयार हो पाता है। एक पीस को तैयार करने में 3 दिन का वक्त लगता है। चौथे दिन पैकिंग में माल जाता है। कास्टिंग इसकी लगभग 200 रुपये के आसपास आती है। हैदराबाद में अभी हुनर हाट जो चल रहा है, ये आप पहली बार तो हैदराबाद से? जी, पहली बार ही आया हैदराबाद में। नहीं, इससे पहले और कहीं पर भी आपने? हुनर हाट में, हाँ, हाँ, इससे पहले गए थे, मथुरा गए थे। मथुरा। वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, ठीक था, रिस्पॉन्स बढ़िया था। हैदराबाद में भी बहुत बढ़िया। इंक्वायरी कैसे है? बढ़िया जी, थैंक यू। सब बढ़िया जी। हुनर हाट का एक प्रोग्राम, एक मेला शुरू किया है और हैदराबाद में दूसरा और 37वां मेला मुनक़िद किया जा रहा है। इस मेलों के ज़रिए मुल्क भर में तकरीबन 8 लाख अफराद को रोज़गार से जोड़ा गया है। आज इस मेले को देखने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात से बरदाश ग्रुप के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अली जुबैदी और जुबैदी मेडिकल नेटवर्क के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उमर अल जुबैदी और डॉक्टर फजल हैं। उसके साथ हमारे साथ हैं सौरभ गंगुली जी, सौरभ दुबे जी, जो इस मेले के हैदराबाद में मुनक़िद उसके जो है इंचार्ज हैं। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। डॉक्टर फजल, आप लोगों ने आज हुनर हाट का दौरा किया, ये दौरे के बाद इस दौरान आपने क्या महसूस किया? सच बात तो यह है कि पहले तो हैरत हो गई कि हमारे दरमियान इतने बड़े बड़े फ़नकार हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, ऐसा लगता है कि इनके हाथ में जादू है। पता नहीं था कि ऐसे ऐसे फ़नकार हैं और इन तमाम फ़नकार को एक जगह जमा किया गया। इनको अपना फ़न उजागर करने का मौका मिला, इनको अपना फ़न बताने का मौका मिला और हमको भी यह देखने का मौका मिला कि हाथ से बनी हुई चीज़ें इतनी आसानी के साथ हम समझते हैं कि जो चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद कई चीज़ें ऐसी है जो केमिकल फ्री हैं और इनका फ़न को देखकर हमको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे भारतीयों में, हमारे हिंदुस्तानियों में इतने ज़्यादा फ़नदा हैं और इनके फ़न को उजागर करना मैं समझता हूँ कि इंडिया से बाहर नए और भी कंट्रीज़ में इसको प्रमोट करना चाहिए, इनको बताना चाहिए। और ये मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहुत बड़ा अहम तरीन काम किया है कि इन फ़नकारों को एक जगह जमा करके इनके रोज़गार का मौका इनको फराहम किए हैं, इनको मौका दिए हैं कि ये अपना फ़न सबके सामने बताएं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये इंडिया से बाहर भी, जैसा कि मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं दुबई से, अबू दुबई से, इनके पास उस कंट्रीज़ में भी ऐसा अगर ये बताएं तो ये वहाँ के लोगों को यानी ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा, बहुत तारीफ़ होंगी और इसके साथ इनको भी बड़ा रोज़गार मिलेगा, इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने का मौका मिलेगा। बहुत ही काबिल तारीफ़ है ये मिनिस्ट्री कि इस तरह का ये प्रोग्राम यहाँ पर हैदराबाद में इस तरह की एग्ज़िबिशन हुई है। बहुत खुशी हुई, बहुत हैरत इस बात की हुई कि इतना अच्छा फ़न हम इसको निगलेक्ट करके थे, आज देखने के बाद मौका मिला कि बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ का अरेंजमेंट शानदार है, यहाँ पर बेहतरीन अरेंजमेंट है और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हुई मुझे देख कर के आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दुबे जी जो इस मेले के इंचार्ज हैं, दुबे जी ये बताइए इस 37वें हुनर हाट को मुनक़िद करने में आपको क्या दिक्कतें पेश आई या फिर आपने इसको आसानी से कंडक्ट किया और इससे आपको हैदराबाद में मुनक़िद क्या फ़ायदा हुआ और फ्यूचर के लिए क्या इसको आप महसूस करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के भी द्वारा
यह 37वां हुनर हाट हैदराबाद में, जिसका आज 8वां दिन है। और 37वां हुनर हाट है तो हम लोग जब से शुरू किए थे और आज तक कुछ ना कुछ चीज़ों को हर स्टेट में लगाने के बाद वहाँ सर चीज़ों को आगे बढ़ाते गए, सीखते गए, तो यहाँ तक आते आते हमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, हम लोगों के बीच अच्छा समन्वय बैठा और हम लोगों ने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया। इनॉग्रेशन पे श्री किशन रेड्डी जी, यहाँ के डिप्टी होम मिनिस्टर जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। उस दिन से लेकर के आज 8वां दिन है और बहुत ही सफलतापूर्वक आप देख सकते हैं। शाम के टाइम आपको यहाँ पर भीड़ 80,000, 90,000, रात होते होते 1 लाख तक की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आज शुक्रवार है, 8वां दिन है। आज दोपहर के बाद से ऐसा लग रहा है कि अब पूरा मैदान भर चुका है। 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लोग खरीदारी बहुत मात्रा में कर रहे हैं। आर्टिशंस बहुत खुश हैं, उनको जो यह प्लेटफॉर्म मिला है, उनका जो लोग आ रहे हैं वो उनसे शॉपिंग कर रहे हैं, सामान को लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं मेरा गाँव मेरा देश, उसके अंदर फूड के स्टॉल्स हैं, जिसके अंदर लोगों की इतनी भीड़ है, लोग इतना स्वाद, जो जायका है उसका टेस्ट उनको इतना पसंद आ रहा है कि एक व्यक्ति आप जो पहले दिन आया था वह 8वें दिन भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि लाजवाब व्यंजन जो है वो यहाँ पर परोसे जा रहे हैं। साथ में ही हमारा फूड कोर्ट है, उसके अंदर नॉनवेज भी है, वेज सेक्शन भी है। साथ ही साथ हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आज महालक्ष्मी अय्यर जी का परफॉर्मेंस चल रहा है, पीछे आप देख सकते हैं। और बड़े जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, ये 10 दिन के पूरे प्रोग्राम में पहले दिन से लेकर के 10 दिन तक कंटिन्यूसली हमने किसी बड़े कलाकार को मंच, और साथ ही साथ जो हुनर के उस्ताद हैं, जो कलाकार हैं, जिनको मंच जो असल में किरदार निभाते हैं, उनको मंच हम व्यवस्था यहाँ प्रदान करते हैं इस हुनर हाट के माध्यम से। तो हमें हर प्रकार से यह सफल जा रहा है और इसके लिए मीडिया भाइयों को, सबको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। मैं अल जुबैदी मेडिकल ग्रुप यूएई के जो है डायरेक्टर उमर अल जुबैदी से ख्वाहिश करता हूं कि वो उन्होंने आज इस हुनर हाट का विज़िट किया तो उसके बारे में अपने तासुरात का इजहार करें। In the first of the all thing, I thank you, Mr. Jilani or Dr. Fazal. This is first time I'm visiting like this festival, and really it is appreciated. A lot of work is done here, and it look like a small global village in Dubai, in our country. Really, thank you for all the effort. Thank you, all the best. हुनर हाथ हमारा है, मगर अल्लाह ताला ने इसमें हुनर दिया है और इसी को मरकज़ी वज़ारत अक़लियती बहबूद ने इस्तेमाल करते हुए हुनर हाट के नाम से एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा रहा है। मरकज़ी वज़ारत का ख्याल है कि मुलाज़मतें हर एक को फ़राहम नहीं की जाती, उन्हें मगर रोज़गार ज़रूरी है, तो उसके लिए तिजारत की जानिब राग़िब करना उनका मकसद है। उसके लिए मरकज़ी वज़ारत अक़लियती बहबूद ने हुनर हाट के ज़रिए मुल्क भर में अब तक 36 ऐसे इवेंट मुनक़िद कर चुकी है। आज ये 37वां हैदराबाद में दूसरा और ये 37वां मुनक़िद किया जा रहा है इवेंट। इस इवेंट के ज़रिए आवाम को जहाँ पर ख़रीदारी और मुल्क के बेहतरीन तैयार करदा मिट्टी के बर्तन, जिसका आज जो बर्तन उनका हो चुके हैं, या फिर वो लकड़ी का सामान हमने बचपन में ख़दीम देखा था, मगर आज उसको दोबारा यहाँ पर देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमने अपने असासे को तर्क नहीं किया और हमारी कौम, हमारे मुल्क के आवाम के पास वो असासा महफूज है, मगर मजबूरी ये है कि उसको आवाम तक पहुँचाना है और आवाम उसकी क़दरदानी करती है। उसकी ज़िंदा मिसाल हैदराबाद में मुनक़िद होने वाला ये हुनर हाट प्रोग्राम है। मुल्क के चप्पे 30 रियासतों से 300 से ज़्यादा फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं और वो खुश हैं कि उनकी हैदराबाद में पजीराई हुई है और यहाँ से वो लोग बेहतरीन अपना तासुर लेकर जा रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बार बार हैदराबाद में ऐसा इवेंट मुनक़िद हो और वो दोबारा हैदराबाद आएँ। और इसकी खूबी ये है कि आज मुझे देखने का मौका मिला, मुत्तहिदा अरब इमारात से कुछ लोग आए हैं जो बिजनेस में गुरे, वो लोग भी इसका विज़िट किए हैं, वो भी मुतासिर हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस तरह का प्रोग्राम दुबई वगैरह में मुनक़िद किया जाए। आज जुम्मा इवेंट का आखिरी दिन, आज का अंदाज़ा है कि 1 लाख अफराद ने इसका मुआयना किया और ख़रीदारी भी की है। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म
आम आवाम के लिए है और उसके साथ बेरोज़गारों के लिए यहाँ से एक मैसेज है कि वो मुलाजिमत पर इन्हिसार करने के बजाय आए, तिजारत को अपनाएं, उससे उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, उससे खुद हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी अगर हम तिजारत से बेहतर हो सकता है। INN चैनल से के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन संदीप यादव के साथ।